दिए जमहूर के मतवालों ने, हर सरेदार बगावत के हैं नगमे गाए। یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ سچے اور عظیم انسانوں کے مزاروں کے احاطوں میں مسجدیں بنتی ہیں، لیکن مسجدوں کے احاطوں میں بننے والے مزار کسی نہ کسی مصلحت کے تحت بنائے جاتے ہیں۔ جنرل ضیاء اپنی زندگی میں بھی اسلام کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرتے رہے، اور ان کے مرنے کے بعد ان کے سیاسی جانشینوں نے انہیں مسجد کے صحن میں دفنا کر اسلام کو پھر سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا۔ جناب بھٹو کی ویرانے میں واقع قبر پر ہر وقت عقیدت مندوں کا اجتماع اور دارالحکومت اسلام آباد میں جنرل ضیاء کی قبر پر چھائی ہوئی ویرانی اس حقیقت کی غماز ہے کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا۔ نام فقیر تنا دا باہو، قبر جنا دی جیوے ہو۔ وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ انہیں ایک مسجد کے صحن میں دفن کرنے والے ان کے سیاسی جانشین ایک ایک کر کے انہیں چھوڑتے چلے گئے، اور آج جنرل ضیاء مکمل تاریخی گمنامی اور تنہائی کا شکار ہیں، کیونکہ جنرل ضیاء کا دور کسی لحاظ سے بھی قابل فخر نہ تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے اسلام اور احتساب کے نام پر نہ صرف پاکستان کی نوزائیدہ جمہوریت کو قتل کر دیا، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں عوام کے بنیادی انسانی، اسلامی اور جمہوری حقوق کو پامال کر کے پاکستانی معاشرے کو زندہ انسانوں کا قبرستان بنا دیا۔ جنرل ضیاء کے ظالمانہ قوانین سے محنت کش طبقہ، خواتین اور اقلیتیں سب سے زیادہ متاثر ہوئیں۔ انہوں نے محنت کشوں کے حقوق کی آواز بلند کرنے والی ہر تنظیم کا گلا گھونٹ دیا۔ ہڑتالوں اور ٹریڈ یونین سرگرمیوں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ مارشل لاء حکومت نے دنیا بھر میں منائے جانے والے مزدوروں کے عالمی دن پر بھی پابندی لگانے کی کوشش کی۔ جنرل ضیاء کے اقتدار کے پہلے ہی سال میں محنت کشوں کے خلاف ظالمانہ تشدد کا ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کی مثال 20ویں صدی میں کسی بھی ملک میں نہیں ملتی۔ کالونی ٹیکسٹائل ملز ملتان کے مالکان کے مارشل لاء حکام کے ساتھ خصوصی تعلقات تھے۔ اس مل کے مزدور ایک عرصہ سے ظلم و زیادتی کا شکار ہو رہے تھے، لیکن مارشل لاء اور سرمایہ دار طبقے کو ان کے مطالبات منظور نہیں تھے۔ ملتان ٹیکسٹائل ملز کے مزدوروں کی جد و جہد کو ختم کرنے اور پاکستان کے تمام مزدوروں اور محنت کش طبقے کو سبق سکھانے کے لیے 2 جنوری 1978 کو مزدوروں کے اجتماعات پر گولی چلائی گئی، جس کے نتیجے میں 200 مزدور ہلاک ہو گئے۔ بنیادی چیز یہ تھی کہ ملک میں ایک تبدیلی آئی کہ عوامی حکومت جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کی حکومت تھی، اسے ایک آمر ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے غیر آئینی طریقے سے حکومت پر قبضہ کیا، اور یہ پہلا ٹیسٹ تھا اس کا کہ یہاں 2 جنوری کو مزدوروں کو دہشت زدہ، خوف زدہ کر کے ایسا ایکشن لیا جائے کہ پورے ملک میں سراسیمگی پھیل جائے۔ 2 جنوری 1978 کا جب کالونی ٹیکسٹائل مل میں بھی مزدور جو ہیں اپنے مطالبات کے لیے جو بونس اور منافع کے اندر ان کا حق تھا اس کے لیے احتجاج کر رہے تھے اور اپنا ہڑتال کا جو ہے قانونی حق استعمال کر رہے تھے، بہیمانہ طریقے سے وہاں پہ یہ ایکٹ ہوا اور گولی چلی، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مزدور جو ہیں وہاں پہ مارے گئے۔ پوری دنیا میں جو ہائی لائٹ کیا گیا وہ محترمہ نصرت بھٹو نے کیا کہ وہ سیاستدانوں میں سب سے پہلے ان جاں بحق ہونے والے مزدوروں کے گھروں میں پہنچیں، اور انہوں نے برقع پہن رکھا تھا، ماشاء اللہ کی وجہ سے پابندیاں تھیں، اور جب یہ دیکھا کہ ان کی اشک شوئی کے لیے ایک ایسی خاتون آ گئی کہ جس کا خاوند ابھی جیل میں تھا،
और फिर हुकूमत ने उनको मुल्तान बदर कर दिया। जिस वक्त जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ लगा, उस वक्त मैं रेलवे कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद में एक ट्रेड यूनियन का एक एक्टिविस्ट था, रेलवे वर्कर यूनियन का मैं सीनियर नायब सदर था। तो उस वक्त जो मजदूरों के ऊपर जो जुल्म और सितम हुआ, और उस हवाले से ज़ियाउल हक का दौर मजदूरों के हवाले से एक स्याह तरीन दौर था। उसमें मजदूरों के ऊपर कोड़े बरसाए गए। रेलवे के एक मजदूर बाबा सिद्दीक, जिसे 1 साल की कैद और 10 करोड़ की सजा हुई, और वो बूढ़े शख्स था। और इसी तरह मजमूई तौर पर मजदूरों के लिए पूरे पाकिस्तान में मजदूरों पर 28,000 मजदूर बेरोजगार किए गए, और उनके अंदर 200 मजदूर, तकरीबन 200 से 250 मजदूर का कत्लेआम किया गया, जिसमें कानूनी टेक्सटाइल मिल के मजदूर भी शामिल हैं। ख़वातीन तादाद और समाजी हैसियत के एतबार से इंसानी माशरे में मर्दों के साथ मसावी हुकूक की हामिल होती हैं, जिसे दुनिया के तमाम मज़ाहिब और ज़वाबिते इखलाक तस्लीम करते हैं। इस्लामी माशरे में तो इनकी हैसियत और भी मुमताज़ होती है, जहाँ उन्हें वालिदैन के अलावा शौहर की जायदाद में भी हिस्सादार बनाया गया है। जहाँ तक खातून सियासी वर्करों का ताल्लुक है, तो ज़िया दौर में पहली मर्तबा ख़वातीन को शाही किले की सऊबतें बर्दाश्त करना पड़ी, जहाँ उन्हें बदतरीन सुलूक का निशाना बनाया गया। इसके अलावा उनके साथ थानों और अजियत रसानी के खुफिया अड्डों पर इंसानियत सोच सुलूक किया गया। ज़ियाउल हक साहब का जो दौर था, मैं समझती हूँ वो औरतों के लिए सबसे तारीख दौर था। जब ज़ियाउल हक का दौर आया ना, तो उस वक़्त बहुत से ऐसे कवानीन आए जो औरतों के हक के ख़िलाफ़ थे। मसलन ये कि कानून शहादत आया 1979। उसमें ये हुआ कि एक केस सामने आया कराची में, फहमीदा अला बख्श केस के नाम से। वो जो लड़की थी, उसने शायद माँ बाप की मर्जी के बगैर शायद शादी की थी, तो ये सज़ा सुनाई गई कि फहमीदा को जो है वो 100 कोड़े लगेंगे, और उसका मियाँ जो है अला बख्श, उसको संगसार किया जाएगा। तालीमी इदारों में सकाफती सरगर्मियों में पाबंदी लगा दी थी। फिर ये कि लड़कियों को स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने पे पाबंदी लगा दी थी। फिर ये कि उस पे लिबास पे बातें आ रही थी कि ये पहन सकते हैं, वो नहीं पहन सकते। और 11 साल की लड़की को मजबूर किया जा रहा था कि वो स्कूलों में जब जाती हैं तो वो चादर सर पे ओढ़ के जाएंगी। ये चौकीदार उनको रोकते थे, लोग हम सड़कों पे औरतों को रोकते थे, कहते थे सर ढको। एक बड़ा अजीब सा माहौल था। फिर एक कमीशन बिठाया गया था, अंसारी कमीशन के नाम से। उन्होंने ये सिफारिशात पेश की कि 55 साल से कम औरत जो है वो किसी इलेक्शन में नहीं खड़ी हो सकती। और ये मतलब चेनी गोइयां हो रही थी कि क्या औरतों को वोट डालने की हक भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जनरल ज़िया ने औरतों की तरह मजहबी अक़लियतों को भी अछूत और दूसरे दर्जे के शहरी बनाकर रख दिया। नफाज इस्लाम के अमल ने गैर मुस्लिम अक़लियतों पर भी गहरे असरात मुरतब किए, और वो भी मुसलमान औरतों की तरह इम्तियाजी सलूक का निशाना बने। तौहीन रसालत का कानून सेक्शन 295C ताज़ीरात पाकिस्तान बदनीयती के साथ किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता था। इसका मुज़ाहरा बाद अज़ां सलामत मसीह और मंजूर मसीह केस में हुआ। तो गालिब का शेर है कि वो उस पूरे दौर पर अगर आप नज़र डालें, 11 साल का अहद ज़ुल्मत, के हर कदम दूरी मंजिल है नुमायां मुझसे, मेरी रफ्तार से भागे है बयाबा मुझसे। आप वो एक ऐसा एक अहद ज़ुल्मत और तारीकी है जिसका अंदाज़ा जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो उसका जो उसकी शिद्दत का और उसने जिस तरह से मुल्क को नुकसान पहुंचाया है और समाज को जैसे तकसीम किया है उसका अंदाज़ा आपको होता है। ख़ास तौर पर 3 शोबे ऐसे हैं जिसमें जनरल ज़ियाउल हक का दौर इस मुल्क का बदतरीन दौर समझा जाएगा। सबसे पहले पाकिस्तान में तालीम का शोबा, चूँकि तालीम के ज़रिए से लोगों को तकसीम कर दिया गया। निसाब में जिस तरह की तब्दीलियाँ लाई गईं इस्लाम के नाम पर, बदकिस्मती से उसने सबसे ज़्यादा मुसलमानों को तकसीम किया फ़िरक़ों में, शिया सुन्नी इस्लामियात। दूसरा ये बदतरीन दौर था पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए। तीसरा जो शोबा है वो पाकिस्तान के गैर मुस्लिम हैं। गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों पर जो पाकिस्तान के दस्तूर के ज़रिए से में जो तरामीम और जो कानून शहादत और ब्लास्फेमी का कानून और दीगर कवानीन जो
مذہبی اقلیتوں کے خلاف، غیر مسلم پاکستانیوں کے خلاف بنائے گئے۔ घुटन के दौर में जहालत पलती है और इल्म और सकाफत मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। जनरल जिया के दौर में मजहब के नाम पर जहालत, तवहम परस्ती, फिरकावारियत और बुनियाद परस्ती ने खूब फरोग पाया, जिसने इंसानी माशरे की हर खूबसूरती को निगल लिया। इस दौरे सितम में अदब और सकाफत, फनून लतीफ़ा, फिल्म और थिएटर, गर्जिये के तहजीब व तमद्दुन की हर निशानी रूबा ज़वाल हो गई। लोग सेहतमंद तफरीह के लिए तरस गए, जिसके नतीजे में क्लाशनकोफ और हेरोइन कल्चर ने जन्म लिया। बकौल इयन टालबोट, इस इल्जाम की तस्दीक उस वक्त हो गई जब उनके सियासी जानशीन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 1993 को मनशियात के खिलाफ जिहाद का साल करार दिया, तो पाकिस्तान के हर 16 मर्दों में से एक मनशियात का आदी था। ज़ियाउल हक का दौर ही वो बुनियाद वहाँ से फराम हुई कि आज जिन मसाइल का हम शिकार हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मज़हब के नाम पर जो जहालत फैलाई जा रही है और जो एक ख़ास अंदाज से यहाँ पे समाज के अंदर और फिर हमारे बतौर एक मुल्क दीगर हमसाई ममालिक के साथ जो ताल्लुकात ख़राब होते हैं, वो ज़ियाउल हक के या ज़ियाउल हक के ज़माने या ज़ियाउल हक की पॉलिसियों का ही एक पैदावार है। एक तरफ हमें नज़र आता है कि फ़िरका वराना तज़ादात जो है ना उसको जन्म दिया गया, लासानी बुनियादों पे लड़ाई झगड़ों को जन्म दिया गया, मजमूई तौर पर सियासी अमल को बहुत बुरी तरह से पामाल किया गया। यानी कि मैं मिसाल के तौर पे समझता हूँ कि नौजवानों का एक बड़ा एक रोल होता है सोसाइटी के अंदर उसको बेहतरी की तरफ ले जाने में, तो उनको दूर कर दिया गया, या अगर सियासत हुई उस ज़माने में तलबा की तो वो एक ख़ास किस्म की बिगड़ी हुई शक्ल थी, पुरतशद्दुद किस्म की, जिसका आज भी हमें उसका इजहार नज़र आता है। जनरल जिया का दौर मुकम्मल तौर पर फिक्री और समाजी इंतशार का दौर था, एक ऐसा दौर जिसने पाकिस्तानी कौम को मुस्तकबिल के बारे में हर तरह के इबाम से दो चार कर दिया। मुल्क में बैक वक्त 3 तरह के कवानीन नाफिज थे जो एक दूसरे की जिद थे, लेकिन उनका मकसद एक था, यानी जनरल जिया के जाती इख्तिदार को दवाम बख्शना। एक तरफ मार्शल लॉ के कड़े और पुरतशद्दुद फौजी कवानीन, दूसरी तरफ 1973 के मस्क शुदा दस्तूर के कवानीन, और तीसरी तरफ जनरल जिया के खुद साख्ता इस्लामी निज़ाम के कवानीन। जनरल जिया का कोई भी मुखालिफ इन तीनों कवानीन के गर्दाब से बच नहीं सकता था। जिया दौर के इस्लामी निज़ाम के बारे में उनकी एडवाइजरी काउंसिल के एक रुकन अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर कहते हैं, जब मुझे यकीन हो गया कि जनरल ज़ियाउल हक नफाज इस्लाम के लिए मुखलिस नहीं, तो मैंने एडवाइजरी काउंसिल की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। जनरल ज़ियाउल हक से मेरे इख्तिलाफात के बाद काबतुल्लाह के अंदर मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं उनकी मुखालफत क्यों करता हूं, तो मैंने जवाबन अर्ज किया कि आप इस्लाम का नाम लेकर लोगों को इस्लाम से बरगश्ता कर रहे हैं। मेरे नजदीक मौजूदा जनरल ज़िया का दौर इस्लाम के लिए भुट्टो की निस्बत ज्यादा नुकसान दे रहा है। मौलाना अहमद शाह नूरानी, जो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सियासी मुखालिफ और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के अहम रहनुमा थे, उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में कोई सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, लादीन शख्स इस्लाम को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना जनरल साहब ने पहुंचाया। दूसरे कौमी मामलात की तरह जनरल ज़िया ने सियासी निज़ाम के बारे में भी पूरी कौम को ज़हनी इंतशार में मुब्तला किए रखा। कभी वो सदारती निज़ाम की हमायत करते, कभी मुतनासिब नुमाइंदगी की, कभी फरमाते इस्लाम में सियासी जमातों की गुंजाइश नहीं, कभी सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन का कानून बना देते। इसी दौरान उन्होंने 24 मार्च 1981 को PCO जारी कर दिया, जिसके तहत अदालतों के रहे सहे इख्तियारात भी सल्ब कर लिए गए, और उसी के तहत जनाब भुट्टो की फांसी में फैसला कुन किरदार अदा करने वाले चीफ जस्टिस अनवारुल हक को फारिग कर दिया। उन्होंने यही कुछ लाहौर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन के साथ किया, जिनका जनाब भुट्टो के खिलाफ तासुब किसी से छुपा हुआ नहीं था। कौम को मुख्तलिफ सियासी निज़ामों और तरीक़े हाय इंतखाबात में उलझाने के बाद जनरल ज़िया ने 24 दिसंबर 1981 को गैर मुंतखब मजलिस शूरा का ऐलान कर दिया और अपनी मर्जी के 350 मेंबरों को नामजद करके ख्वाजा मोहम्मद सफ्दर को इसका चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। मैं ख्वाजा मोहम्मद सफ्दर सिर्फ दिल से हलफ उठाता हूँ,
जनरल ज़िया की तरफ से जमहूरियत की बहाली के लिए बार बार वादे तोड़ने और अपने जाबिराना निज़ाम को मुस्तहकम करने की खातिर आमिराना इक़दामात के खिलाफ फरवरी 1981 में तहरीक बहाली जमहूरियत MRD का क़याम अमल में आया, जिसने 14 अगस्त 1983 से पूरे मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए जबरदस्त तहरीक चलाई। पीपल्स पार्टी की बहुत सी मुखालिफ पार्टियां जो जनरल ज़िया के असली इरादों से वाकिफ हो चुकी थीं, इस तहरीक में पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हो चुकी थीं, सिवाय जमात इस्लामी और वली खान की नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के। इस तहरीक के दौरान ज़िया हुकूमत ने अवाम पर जुल्म और तशद्दुद की इंतहा कर दी। सिंध में हेलीकॉप्टरों के जरिए फायरिंग और बमबारी की गई, जिसके नतीजे में सैकड़ों अफराद हलाक और जख्मी हो गए, जबकि कैदियों के लिए मुल्क की जेलें कम पड़ गईं। इयन टालबोट लिखते हैं, सिंध में 1983 की एहतजाजी तहरीक महज शहरों के मेहनत कशों या लोअर मिडिल क्लास का मसला नहीं था। ठट्ठा, दादू, लाड़काना और सांगर जैसे इजला की देही आबादी भी इस तहरीक में भरपूर अंदाज से शामिल थी। तहरीक की क़यादत पीपल्स पार्टी और किसानों में मकबूल रसूल बख्श पलीजो की सिंधी अवामी तहरीक कर रही थी। देहात की शोरश बिलाखिर उस वक्त कुचली जा सकी जब 3 डिवीजन आर्मी तैनात करके उन्हें हेलीकॉप्टर शिप्स का साया मुहैया किया गया। बिलाशुबा इस जालिमाना तशद्दुद ने विफाकी पाकिस्तान को कमजोर और सिंधी कौम परस्ती को मजबूत कर दिया। जनरल ज़िया कदम कदम पर अपना बयान, वादा और रूप बदलने में महारत रखते थे। जिस तरह उन्होंने कौम को एक लंबे अरसे तक सदारती, पार्लिमानी और मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ामों की बहस में उलझाने के बाद कौम के सर पर एक गैर मुंतखब मजलिस शूरा मुसल्लत कर दी, उसी तरह उन्होंने 1 दिसंबर 1984 को अचानक रेफरेंडम कराने का ऐलान कर दिया। जनरल ज़िया का रेफरेंडम आज तक दुनिया की सियासी तारीख में एक अजूबे की हैसियत रखता है। इस रेफरेंडम का सवाल यूं था, क्या आप सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के उस अमल की तायीद करते हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के कवानीन को कुरान हकीम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इस्लामी अहकामात से हम आहंग करने और नजरिए पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू किया है? और क्या आप इस अमल को जारी रखने, मजीद उस्तवार करने और मुनज़्ज़म और पुरअमन तरीके से इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करने की हमायत करते हैं? इस सवाल के जवाब में हाँ का मतलब जनरल ज़ियाउल हक को आइंदा 5 सालों के लिए सदर मुंतखब करना था। जनरल ज़िया ने अपने ज़ाती इक़्तिदार की खातिर बेउसूली की तमाम हदें पार कर दी, यहाँ तक कि एक वक्त में उनका साथ देने वाले भी चिल्ला उठे। ज़ियाउल हक ने रेफरेंडम कराया, वो भी फ्रॉड था, और ज़ियाउल हक साहब ने दस्तूर में जो तरामीम की उसका भी उन्हें कोई हक हासिल नहीं था। रेफरेंडम में जितने भी वोट डाले गए वो फरिश्तों ने डाले हैं या फिर पुलिस एहलकारों और पटवारियों ने डाले हैं। रेफरेंडम से बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। रेफरेंडम के इस फ्रॉड को अवामी शायर हबीब जालिब ने यूं बयान किया, हर तरफ हू का आलम था, जिन था या रेफरेंडम था। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ इंतखाबी धांधलियों के इल्जाम में बनने वाली ज़िया हुकूमत का हर इकदाम झूठ, मुनाफकत और धांधली पर मबनी था। रेफरेंडम के बाद इसका मुजाहरा 25 फरवरी 1985 को होने वाले आम इंतखाबात में हुआ। जनरल ज़िया ने बड़ी शद्दोमत के साथ जमाती इंतखाबात की मुखालफत की और उसे गैर इस्लामी करार दिया। सियासी जमातों को पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा करार देते हुए जनरल ज़िया ने यहां तक कहा कि अगर उनके बस में हो तो वो अगले 5 आम इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर कराएंगे। लेकिन फरवरी 85 में गैर जमाती इंतखाबात कराने के बाद खुद ही 9 मुंतखब अरकान असम्बली पर मुश्तमिल मुस्लिम लीग के नाम से एक नई सियासी जमात बना दी गई और मोहम्मद खान जुनेजो को पाकिस्तान का वजीर आजम और नई मुस्लिम लीग का सरबराह बना दिया गया। चूंकि ये सब कुछ ज़िया के अपने बनाए हुए इंतखाबी असूलों के खिलाफ था, इसलिए सियासी जमात में शमूलियत के खिलाफ कौमी असम्बली के स्पीकर सैयद फ़ख्र इमाम ने वजीर आजम जुनेजो और कई दूसरे वज़रा के खिलाफ नाअहली के रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज दिए
جس کے نتیجے میں سزا کے طور پر سپیکر قومی اسمبلی سید فخر امام کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ 25 فروری 1985 کو غیر جماعتی انتخابات ہوئے، جنہوں نے بعد میں قوم کو متحد کرنے کی بجائے ذات برادری کی سطح پر تقسیم کر دیا۔ اگرچہ جنرل ضیاء نے اعلان کیا تھا کہ وہ عام انتخابات کے فوراً بعد مارشل لاء ختم کر دیں گے، لیکن انہوں نے 30 دسمبر تک مارشل لاء نہ اٹھایا، جب تک انہوں نے خود کو وسیع ثواب دیدی اختیارات سے مسلح نہ کر لیا، جس میں مقننہ پر انتظامیہ کو بالادستی دے دی گئی تھی۔ انہوں نے منتخب اداروں سے بدنام زمانہ 8ویں آئینی ترمیم منظور کرا لی، جو صدر کو اختیار دیتی تھی کہ وہ وزیر اعظم کو برطرف کر سکے، قومی اسمبلی تحلیل کر دے، صوبائی گورنروں اور مسلح افواج کے سربراہوں کا تقرر کرے۔ اس تباہ کن ترمیم نے پاکستانی سیاسی عمل کو مزید عدم استحکام سے دوچار کر دیا، جس نے جنرل ضیاء اور ان کے جانشینوں کے ہاتھوں اگلے 10 سالوں میں 4 حکومتوں کا خاتمہ کر دیا۔ 8ویں ترمیم کے بعد 73 کے متفقہ دستور کا حلیہ ہی بگڑ گیا۔ جنرل ضیاء نے تمام اختیارات اپنی ذات میں سمو لیے اور وزیر اعظم کو محض کٹ پتلی بنا کر رکھ دیا۔ این ٹیلبوٹ کے مطابق جنیجو محض کٹ پتلی بن کر نہ تو رہنا چاہتے تھے اور نہ نظر آنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے مارشل لاء کے خاتمے اور قومی اسمبلی میں سیاسی جماعتوں کی تشکیل کے اقدامات کی رفتار پر جنرل ضیاء سے اختلاف کیا اور افغانستان کے لیے ضیاء الحق کی پالیسیوں سے انحراف کیا۔ محمد خان جنیجو نے 1 جنوری 1986 کو مارشل لاء کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ جنرل ضیاء کے نامزد وزیر اعظم ہونے کے باوجود انہوں نے جنرل ضیاء کی آمرانہ اور جمہوریت کش پالیسیوں کی مزاحمت کی۔ انہی کے زمانے میں 10 اپریل 1986 کو محترمہ بے نظیر بھٹو اپنی پہلی جلا وطنی سے وطن واپس آئیں، جہاں ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ یہ اس وقت تک پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی سیاسی لیڈر کا سب سے بڑا استقبال تھا۔ اپنے جلوس کے اختتام پر انہوں نے مینار پاکستان پر ایک عظیم الشان جلسے سے خطاب کیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی واپسی سے پاکستانی سیاست میں ایک مرتبہ پھر گرم جوشی پیدا ہو گئی۔ میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے، میرے سر پر ظلم کا پنجہ ہے، میں مرنے سے کم ڈرتی ہوں، میں مرنے سے کم ڈرتی ہوں، میں موت کی خاطر زندہ ہوں، میں موت کی خاطر زندہ ہوں، میرے خون کا سورج چمکے گا تو بچہ بچہ بولے گا میں باقی محترمہ بے نظیر بھٹو سن 1984 میں جلا وطن ہو گئی تھیں۔ جلا وطنی کے دوران ہی بھٹو خاندان کو ایک اور عظیم صدمہ برداشت کرنا پڑا، جب سن 1985 میں جناب بھٹو کے چھوٹے صاحبزادے شاہ نواز بھٹو کو فرانس کے شہر کینز میں زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ دس اپریل 1988 کو راولپنڈی کے قریب اوجڑی کیمپ میں زبردست دھماکے ہوئے، جس میں کئی افراد ہلاک ہو گئے۔ اس افسوسناک واقعے کی تحقیقات کے سلسلے میں محمد خان جنیجو اور جنرل ضیاء کے درمیان اختلافات اور بڑھ گئے، کیونکہ جنرل ضیاء اس واقعے میں ملوث حقیقی مجرموں کو بچانا چاہتے تھے۔ جنرل ضیاء جو گزشتہ 10 سال سے آمر مطلق بنے ہوئے تھے، انہیں اب اپنے اقتدار میں شرکت بھی گوارا نہ تھی۔ حالانکہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ انتقال اقتدار کی بجائے شرکت اقتدار گوارا کر لیں گے۔ ضیاء اور جنیجو کے درمیان کشیدگی اس وقت اپنے عروج پر پہنچ گئی جب جنرل ضیاء کی افغان پالیسی سے انحراف کرتے ہوئے جنیجو حکومت نے 14 اپریل 1988 کو جنیوا معاہدے پر دستخط کر دیے، جس کی روح سے سوویت فوجیں افغانستان سے نکل گئیں۔ چونکہ روسی فوجوں کی افغانستان میں مداخلت نے جنرل ضیاء کے اقتدار کو طوالت بخشی تھی، لہذا وہ نہیں چاہتے تھے کہ افغان مسئلہ حل ہو۔ جنرل ضیاء نے اپنے اقتدار کی خاطر پاکستان کو افغان مسئلے میں اس طرح الجھا دیا تھا کہ آنے والی نسلیں بھی کلاشنکوف، ہیروئن کلچر اور مذہبی انتہا پسندی کی دلدل میں 30 برس گزرنے کے بعد بھی آج تک پھنسی ہوئی ہیں۔
ओजड़ी कैंप की तहकीकाती रिपोर्ट और जेनेवा मुआहदे ने जनरल जिया को सीख पा कर दिया और उन्होंने अपने ही नामजद करदा वजीर आजम को अपनी 8वीं आईनी तरमीम 58(2)B के जरिए 29 मई 1988 को वजीर आजम के ओहदे से हटा दिया और असेंबली को तहलील कर दिया। पहले की तरह जनरल जिया ने फिर हकीकी इस्लामी निज़ाम के अहिया का वादा किया और 16 अक्टूबर 1988 को कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक मरतबा फिर गैर जमाती बुनियादों पर मुनक्किद कराने का ऐलान कर दिया। जनरल जिया अभी तक अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए कई गैर आईनी और गैर जमहूरी इक़दाम करने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 17 अगस्त को ज़ियाउल हक अमेरिका के बने M1 इब्राहिम टैंकों का मुआयना करने के लिए टामे वाली फायरिंग रेंज में पहुंचे। वापसी पर बहावलपुर से इस्लामाबाद रवानगी के लिए टेक ऑफ के बाद महज चंद मिनटों में उनका तैयारा लड़खड़ाता हुआ जमीन की तरफ लपका और इस कदर तेजी से शोलों में तब्दील हो गया कि अमले और मुसाफिरों की बाक़ियात नाकाबिल शनाख्त हो गई। यूं वो आमिर मुतलक जो 11 साल तक इस्लाम, इंसाफ और एहतिसाब के नाम पर अपने सियासी मुखालिफिन को कोड़ों, कैद-ए-बंद, जलावतनियों और फांसियों की सजाएं देता रहा, अपने अंजाम को पहुंच गया। दुनिया ने ये इबरतनाक मंजर भी देखा कि जिस जनरल जिया ने जुल्फकार अली भुट्टो के अहले खाना को उसकी मैयत का आखिरी दीदार करने की इजाजत न दी, कुदरत ने उससे इस तरह इंतकाम लिया कि उसके अहले खाना को भी उसके आखिरी दीदार से महरूम कर दिया, क्योंकि जनरल जिया का जिस्ते खाकी जल कर राख हो चुका था। मलबे के ढेर से जनरल जिया का सिर्फ जबड़ा मिल सका, जबड़ा जो दरिंदगी और सफाकी की अलामत होता है। हमके आजादी जमहूर के मतवालों ने हर सरे